Hi everyone, welcome to the session. My name is Tarun Malik. So, we have started this series with one clear aspect that all the questions in this series will be of shortcut types. I mean, we will do all the CAT questions which appeared over the years in CAT, right? But those questions can be solved with a short span of time. I mean, if you solve the questions using the normal approach, it will take you 2 to 3 minutes, right? Or maybe more than that, correct? But these questions can be solved in very less time using some or the other tricks. Now, tricks can be of any kind, correct? So we have variety of tricks in these type of questions. So we will go one by one that and what kind of question, what kind of trick of shortcuts can be used, correct? And sometimes it is possible to solve the question mentally if the logics are clear, right? You just read the question, right? Not much calculation are needed, okay? So if you know the concept, you can solve these questions mentally, some of these, right? So the idea is basically we will solve questions which are involved with some of the other tricks, correct? All right. So uh, I mean, in this session, we will take around three questions last a few years. Okay, CAT questions. Why we are taking CAT questions is actually give you the idea that in CAT these kind of tricks or jugaad actually happens. Okay, so many questions can be solved with jugaad, so-called Indian jugaad. Correct. All right. तो चलिए start करते हैं. Let me give you first question. This is my brief introduction. You can see it now. Obviously the tradition is that you pause the video and try it out, so correct, and then we'll see that how this question can be solved in very less time. Okay, so I will not give you the proper approach. Okay, if you want proper approach, I can give you in the comments. That's okay, because that is not the idea of the series of the video. So I'll only give you the shortcut. Okay, I hope it's clear. So, okay, so the sum of the n first n terms of a series in which is in arithmetic progression is 100, and sum of next n terms of the same AP is 300. Find the ratio of common difference and the first term. Okay, so this is the first question. Now it appears at CAT 13 or 14. I didn't remember exactly, but it is actually a CAT question. Okay, because this was in my slot only. Okay, so how I solve that question, let me tell you. Okay, so the proper approach is normally like you know that you find the AP, right, first term and common difference and then solve it, correct? बट इसमें हम क्या जुगाड़ लगा सकते हैं? इफ यू रिमेंबर हमने एक क्वेश्चन किया था क्वेश्चन तो डे में जिसमें हमने एक जुगाड़ लगाया था. ओके, काइंड ऑफ दैट जुगाड़, उसमें भी एन की वैल्यूज के हुई बेसिस पे हमने टर्म सॉल्व किया था. उसी की तरह बात करते हैं. ओके, सो फर्स्ट एन टर्म्स का सम 100 है, नेक्स्ट एन टर्म्स का सम 300 है. नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, इसमें कहीं भी आपको एन नहीं दिख रहा ना, करेक्ट? किसी भी ऑप्शन में एन नहीं है. कैन आई से लॉजिकली दैट द आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन? इट मीन्स वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ एन, आंसर विल बी सेम ऑलवेज. एन की कोई भी वैल्यू ले लूँ तो आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज ऑप्शन में एन तो है नहीं, करेक्ट? सो लेट्स एज्यूम एनी वैल्यू ऑफ एन. मान लो एन 1 है, लेट्स से एन इक्वल टू 1. व्हाट डज इट मीन? कि सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म is 100. Now what do you mean by first one term? Is the basically first term. तो पहली टर्म हो गई 100. सम ऑफ नेक्स्ट वन टर्म इज 300. अब अगली एक टर्म का सम 300 है, उसका एक ही मतलब है कि अगली टर्म 300 है. सो कैन आई से फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म इज दिस. सो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर? 200. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 100. व्हाट इज द रेशियो? 2. दैट्स इट. Question solved. Are we clear? No need to form equations, solve and
so on so forth. Okay, now what happens if n is involved in the option also? These are actual cat options. Okay, उसमें n नहीं था, but suppose n होता, suppose first term होती, first option n, second 2n, 1.5n, 3n. okay, then also this approach follows, तब भी ये काम चलेगी. अब आपने देखो कि यहाँ पर n आपने 1 डाला, so if you put n equal to 1 आपका आंसर 2 आया. so options में भी if you put n equal to 1 तो आपका आंसर 2 आना चाहिए, which is only option 2. Got it? अब कब ये चीज फेल हो सकती है वो भी क्लियर होना चाहिए. ओके, ये नहीं कि हर समय जुगाड़ चलेगा ही चलेगा. सपोज दो ऑप्शंस आपको सेम वैल्यू दे देते, देन वी कैन टेक एनी अदर वैल्यू ऑफ n. ओके, n इक्वल टू 2 पे शायद सॉल्व कर लेते. आई मीन मोस्टली ऐसा हो सकता है कि आप एक ही वैल्यू से सेटिस्फाई करवा दो, या फिर ऐसी वैल्यू लो n की जिससे दो ऑप्शन सेम नहीं बनते हैं. जैसे यहाँ पे आपने ऑप्शंस अगर देखो n वाले भी, सो इफ यू पुट n इक्वल टू 1 तो सारे ऑप्शन डिफरेंट ही आएंगे. करेक्ट, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है. और n इक्वल टू 1 इज द सिंपलेस्ट वैल्यू विच वी कैन टेक, तो सबसे पहले वही काम करेंगे. आई होप इट्स क्लियर, राइट? सो दिस इज वन जुगाड़. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. दिस इज ऑल्सो कैट क्वेश्चन, कैट 14 आई गेस, 13 और 14. A 12-sided regular polygon is inscribed in a circle. Find the ratio of the areas of the polygon and that of circle. तो 12-sided polygon एक सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है. तो एक सर्किल है, उसके अंदर एक 12 साइड का पॉलीगन है. इसका आपको एरिया का रेशियो निकालना है. अब देखो प्रॉपर अप्रोच तो आपकी ये होती कि आप एरिया निकालते सर्किल का, मतलब रेडियस मान के, एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ 12 साइडेड पॉलीगन एंड देन फाइंड द एरिया. करेक्ट, रेशियो ऑफ एरिया. अब ऑप्शंस कैसे हेल्प करते हैं? यहाँ पे n का तो शॉर्टकट चलेगा नहीं, है ना. इवन सी, ये तो फिगर मैंने आपको बना के दिखा दी, बट अगर आप सोचो भी, जब आप फिगर बनाओगे कैट के अंदर, सो विल बी क्लियर कि जब आप एक सर्किल बनाओगे और 12 साइड का पॉलीगन बनाओगे, सो वो ऑलमोस्ट सर्किल से चिपका हुआ ही होगा ना. आई मीन ऑलमोस्ट क्लोजर टू द सर्किल, बाउंड्री ऑफ द सर्किल. करेक्ट. सो कैन आई से एरियाज ऑफ पॉलीगन, आई मीन एंड द सर्किल विल बी ऑलमोस्ट इक्वल. बराबर सा ही तो होना चाहिए, कितना ही डिफरेंस है. आप यहाँ पे फिगर में भी देख लो, सो केवल ये छोटे छोटे पार्ट ही तो साइड में गायब हो रहे हैं. तो कैन आई से दिस रेशियो शुड बी क्लोजर टू 1, very close to 1. Now look at the options. And for a safer side, simply take pi as 3. जुगाड़ लगाते हैं. एग्जैक्ट वैल्यू क्या चाहिए मुझे जब अप्रोक्सीमेशन करना है तो मैं पाई को 3 ले लेता हूँ, मेरा काम आसान हो जाएगा. नाउ दिस इज व्हाट, 2/3, नॉट क्लोजर टू 1, इट्स 0.66. इट इज बेसिकली 2.5/pi, दैट इज 3. तो ये भी बहुत क्लोज तो नहीं है, बिकॉज अभी भी 0.5 का डिफरेंस है. और आप यहां पर देखोगे तो 0.5 का डिफरेंस ओवर 3 इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज वेरी हाई. करेक्ट. ऑल्दो ये ऑप्शन कैट में था भी नहीं, मैंने जबरदस्ती डाला है जस्ट टू गिव एन आइडिया कि क्लोज होने पर भी बात बन जाएगी. जो एक्चुअल ऑप्शंस थे वो काफी दूर थे. करेक्ट. तो यहां पर भी आप देखो तो ये 5/30 1/6 है, दैट इज 16%. अब 16% का तो डिफरेंस यहाँ पे क्लियर नहीं है ना. दिस इज ऑलमोस्ट 1c एंड दिस इज मोर देन 1. तो ये 4/3 तो काफी ऊपर चला जाएगा, 1.3 चला जाएगा, नॉट पॉसिबल. सो क्लियरली यू कैन सी ऑप्शन सी इज माय आंसर विदाउट कैलकुलेटिंग एनीथिंग. You just take pi equal to 3, see the options, only one option is there which is closer to 1. That's my answer. Actual CAT question. Okay. और यहाँ पर मतलब I have in fact taken closer options, but actual CAT में ये वाला भी नहीं था as far as I can remember, because मैंने तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था. करेक्ट. और एक और पॉइंट इसमें देखो कि ये आई थिंक 13 का है, 14 यानी कि जस्ट नेक्स्ट ईयर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था जिसमें सर्किल अंदर था और पॉलीगन बाहर था. देन ऑल्सो दिस ट्रिक कैन बी अप्लाइड. ऑल्दो ये वाला क्वेश्चन तो प्रॉपरली सॉल्व करने में बहुत मुश्किल नहीं है, बट अगर आप सर्किल को अंदर कर दोगे तो यू नीड ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो, तो वो क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था इसके कंपेरिजन में. बट ये जुगाड़ तब भी चल गया था. क्लियर. चलिए, डी ऑप्शन तो वैसे भी आउट था क्योंकि एरिया छोटा होना चाहिए, है ना, बिकॉज पॉलीगन की बात चल रही है तो पॉलीगन तो अंदर है ना. करेक्ट.
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, थर्ड क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर का ही है इनफैक्ट, कैट 21। 3 positive integers x, y, z are in arithmetic progression y minus x more than 2 and x, y, z is equal to 5 times x plus y plus z. Find the value of z minus x. Okay. ये कैपिटल ही है बेसिकली, वो छोटे लिखे गए हैं। अब नॉर्मली आप कैसे सॉल्व करते हो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है, 3 नंबर आते हैं, तो यू एज्यूम दैट a माइनस डी एंड a प्लस डी एंड देन सॉल्व, करेक्ट, एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट एंड फिर देखते हैं क्या आएगा वैल्यूज, है ना। बट हम उससे तरह नहीं करेंगे, हम सोचेंगे जुगाड़ क्या बनता है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी है। सी, हम जुगाड़ की जब बात करते हैं तो इट्स बेसिकली स्मार्ट ट्रिक्स। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है तो कर लोगे, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना। स्मार्ट बंदा ही कर सकता है स्मार्ट अप्रोचेस, करेक्ट। चलिए, अब एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर 3 नंबर एपी में है, अगर ए बी सी एपी में है, तो इनका जो एवरेज होता है दैट इज द मिडिल टर्म। इट इज ट्रू फॉर एनी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, 3 टर्म हो, 5 टर्म हो, 7 टर्म्स हो, एपी में है तो एवरेज हमेशा मिडिल टर्म होगी। सो ऑब्वियसली इनका एवरेज बी होगा तो सम 3b होगा। सिमिलरली अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो कहना इसे ये इनका एवरेज है, तो x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा? 3y के बराबर होगा। सो आई कैन राइट दिस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 5 इंटू 3y दैट इज 15y। y से y कट गया, एक्स जेड बराबर 15, और इसने बोला है x, ये तीनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो या तो 1 इंटू 15 होगा या 3 इंटू 5 होगा। 1 इंटू 15 हुआ तो डिफरेंस आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 2। 2 ऑप्शन में है ही नहीं, 14 आपका आंसर। सिंपल। एक्चुअल कैट ऑप्शंस, ठीक है। तो कैसे जुगाड़ चलेगा, यू क्लियर, करेक्ट, ओके। आई होप इट इज क्लियर। सो 3 क्वेश्चन हमने किए और आप देखो कि तीनों ही क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। आपने कुछ ट्रिक सीखी हैं आज। आने वाली वीडियोस में भी हम ऐसी ही कुछ और ट्रिक, या मतलब सिमिलर काइंड हो सकता है, डिफरेंट काइंड हो सकता है, कई तरह के जुगाड़ चलते हैं। ये तो एक हमने तीन क्वेश्चन के अंदर 3 डिफरेंट तरह की ट्रिक्स ला के देखी, करेक्ट। चलिए, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से 3 वीडियो करेंगे, 3 क्वेश्चंस करेंगे, ऑलराइट, एंड इट विल गो इन एवरी वीक। सो हर वीक 2 वीडियोस जाएंगी, सच काइंड ऑफ थिंग। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।